पी चिदंबरम जी, दिनेश गुंडूराव जी, गिरीश चोधांकर जी, दिगंबर कामत जी, फ्रांसिस्को सार्डिनिया जी, एलेक्सियो रेजिनाल्डो जी, एलेक्स सिक्वेरा जी, रमाकांत खलप जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रेस के मित्रों कहा, मगर आजकल प्रेस सरकार की ज्यादा मित्र है, हमारी कम। मगर एक बात है, मैं इसके लिए आपको, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं कि अगर यहां किसी ने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उनके विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इश्यूज की लड़ाई लड़ी है, तो वो है कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता। और ये दो तीन दिन की लड़ाई नहीं है, आप जानते हो, हर रोज जनता की इश्यूज की लड़ाई हमारे कार्यकर्ता ने लड़ी है, हमारे नेताओं ने लड़ी है, और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। यहां पे गोवा में, बाकी हिंदुस्तान में भी, मगर गोवा में एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप डिफेक्टर कह दो, उसको आप ट्रेटर कह दो, जो भी कहना चाहते हो कह दो। और मैं जानता हूं कि ये जो कार्यकर्ता लड़े हैं, आप सब जो लड़े हो, आपके दिल में एक भावना है कि डिफेक्टर्स को जगह नहीं दी जाए। और मैं आज आपको, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और गोवा की जनता को कहना चाहता हूं कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का और जनता का धोखा किया है, उनको हम जगह नहीं देंगे। इस बार मैंने चिदंबरम जी को कहा कि जो हमारे कार्यकर्ताओं के दिल में है, उसके बेसिस पे कांग्रेस पार्टी को काम करना चाहिए। और जो गोवा की जनता के दिल में मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी को लड़ना चाहिए। दो लड़ाइयां हैं, एक नेशनल लेवल पे, और उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के साथ क्या किया जा रहा है, हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है। और दूसरी लड़ाई, गोवा की लड़ाई, जो आप मुझसे बेहतर जानते हो, मगर उसके बारे में भी मैं 2-3 पॉइंट्स
अपनी जो सोच है आपके सामने रखना चाहता हूं। So I will switch between Hindi and English. I've been told that I should speak both Hindi and English. So I will start with what is going on at the national level and how the idea of India, which is also the idea of Goa, is being attacked. Who is benefiting and who is losing out? You will recall some years back, the Prime Minister came on television and did what is now called demonetization notebandi. Cancelled the 1,000 rupee note. Then the government passed a flawed GST, a GST designed to help a few of their friends. And now finally you see farmers all across the country agitated because the BJP, Narendra Modi, have passed 3 new farm laws which are designed to crush the farmers of this country. These are not random events. There is a systematic plan in operation. And the plan is to attack the unorganized sector, to attack small and medium businesses, to attack small traders, to attack labor, and to attack farmers. To take from them and give to the richest, most powerful in the land. And I am not saying to give to hundreds or thousands of people. I am saying that the government of India is handing this country over a few limited business people. Wherever you look, and it doesn't matter which sector you look, you will find the same 5 or 6 names. Look at the ports, look at coal, look at airports, look at agriculture, look at retail, look at telecom. You will find these same 5 or 6 people in sector after sector after sector after sector. What people have to realize is that these 5 or 6 people are benefiting, and millions and millions and millions of people's lives are being destroyed, systematically destroyed. GST is designed to harm small and medium business. Farm laws are designed to destroy the lives of small traders and farmers. That is what is unfolding in this country. I said in the beginning that the media is a friend of the government in Delhi. It is a fact. The media portrays a distorted reality of this country. The media does not raise the issues of farmers, small and medium business people, of labor. And so we have a
tragedy unfolding in our country. At the same time, the Chinese enter our country, take thousands of kilometers of our land, land almost the size of Delhi has been occupied by them. They're sitting inside Indian territory today. And the Prime Minister says, nobody has taken any land. So that is the reality that you are fighting at the national level. Brother is pitted against brother. The nation is divided, hatred is spread, and those same 5 or 6 people benefit. The whole design is to make those same 5 or 6 people benefit. Doesn't matter what happens to the country. Doesn't matter if the country burns. Doesn't matter if hatred spreads throughout the country. But those 5 or 6 people have to benefit. This is the reality of India today. And today when I came to Goa, I realized that exactly the same battle that is taking place, the ideological battle that is taking place at the national level, is taking place here in Goa. The same thing. I'd like to ask you, गोवा को कोल हब बनाया जा रहा है. They've just given me a piece of paper that says the media in Goa is more balanced than the national media. So that is heartening. That makes me happy that you are doing the job that you're supposed to do. We don't expect unfairness from you. We expect fairness from you. And if you're being fair, we are proud of you because you are doing your duty, your job. So I would like to thank the journalists who are being neutral and who are being fair. That is not the case, unfortunately, at the national level. But गोवा को कोल हब बनाया जा रहा है. आज मैं फिशरमैन से मिला, मछुआरों से मिला, और उन्होंने मुझे बताया कि रेलवे लाइन को डबल किया जा रहा है, कोल का इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है और गोवा को कोल हब में बदला जा रहा है. उसके बाद माइनिंग अफेक्टेड लोग आए. उन्होंने बताया माइंस को बंद किया गया, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, और उन्होंने कहा कि माइंस उसी व्यक्ति को दी जाएंगी कि दिल्ली उसी एक व्यक्ति को गोवा की माइंस पकड़ा देगा. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो गोवा को दुनिया की सुंदर जगह को ये कोल हब जो बनाया जा रहा है, किसके लिए बनाया जा रहा है? किसका फायदा होगा इससे? क्या गोवा की जनता का फायदा होगा? क्या किसका फायदा होगा? बताइए. हाँ, तो देखिए, एयरपोर्ट्स भी अदानी, पोर्ट्स भी अदानी, गोवा की माइनिंग भी अदानी,
डबलिंग ऑफ रेलवे भी अदानी, कोल हब भी अदानी। तो गोवा की जनता को क्या मिलेगा? आपके लिए क्या हो रहा है, ये आप मुझे समझा दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने आपसे यह नहीं बताया कि किसके अच्छे दिन आएंगे। यह बात आपको नहीं बताई उन्होंने। वो आपने गलती कर दी, आपने पूछा नहीं भैया आप किसकी बात कर रहे हो। अगर आप उस टाइम पूछ लेते भैया किसकी बात कर रहे हो, कहते अदानी अंबानी की। देश की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। यह गोवा की रियलिटी है। मैंने आपसे कहा कि स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस पर आक्रमण हो रहा है, एग्रीकल्चर पर आक्रमण हो रहा है, और ऐसी स्थिति आ गई है कि देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। कोविड की समस्या आई और यहां बताया जा रहा है कि यूथ कांग्रेस ने ऑक्सीजन सिलेंडर का बहुत अच्छा काम किया। मुझे बताइए यह काम यूथ कांग्रेस का है या यह काम सरकार का है? यह काम सरकार का है। सरकार ने नहीं किया, इसलिए यूथ कांग्रेस को करना पड़ा। और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि आपने यह काम किया और जो सरकार को करना था आपने किया। मगर गोवा को, देश को रोजगार कौन देगा? यूथ कांग्रेस तो नहीं दे सकती, सरकार का काम है। और अगर सरकार हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने में लगी है तो इस देश में रोजगार नहीं पैदा हो सकता। और यही आपने पिछले सालों में देखा है। लंबे भाषण करते हैं, मगर आज गोवा में जितना अनएम्प्लॉयमेंट है शायद आपके इतिहास में नहीं हुआ। सही बोला? सही है ना? युवा को गोवा में रोजगार मिल सकता है आज? नहीं। आज हमारी बात हुई, गाड़ी में हम बात कर रहे थे और मैंने चिदम्बरम जी से पूछा कि गोवा को, बाकी हमारे जो नेता हैं उनसे पूछा, गोवा को सस्टेनेबली रोजगार कैसे दिया जाए। और उन्होंने मुझे बताया, होमवर्क किया, काम किया है। उन्होंने मुझे बताया एजुकेशन हब बनाकर, हेल्थ केयर हब बनाकर, हेल्थ केयर टूरिज्म, इन चीजों से बिना गोवा के एनवायरनमेंट को खराब करे गोवा के युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। और आपने हमारा काम देखा होगा। हमारी सरकार थी, हम नफरत नहीं फैलाते थे, प्यार से जोड़कर हम काम करते थे। मनरेगा हमने दिया, ऐतिहासिक काम किया। और नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि मनरेगा से बेकार योजना हिंदुस्तान में नहीं है। उन्होंने कहा, उनके शब्द। और फिर उसी मनरेगा को कोविड के समय उन्होंने उसका प्रयोग किया। पिछले चुनाव में हमने कहा था कि हिंदुस्तान में चुने हुए लोग बहुत अमीर हो गए हैं और जो आम पब्लिक है उनके पास पैसा नहीं है। इनकम डिस्पैरिटी बहुत हो गई है। और हमने न्याय योजना का आइडिया दिया था। हर व्यक्ति, हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधा
72,000 रुपीस साल के, और उन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, न्याय योजना नहीं की जा सकती। हमारी कोशिश होगी कि अगर हमारी सरकार गोवा में आए तो हम न्याय योजना जैसा कॉन्सेप्ट गोवा की जनता को भी दिलवाएं। हमारा फोकस रोजगार पे होगा, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे और टूरिज्म पे होगा। और हम एक बार फिर गोवा को जोड़कर एक साथ सबको लेकर हम आपको प्रगति के रास्ते पे ले जाएंगे। आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, और मैंने आज फिशरमैन से भी ये बात कही, चाहे कुछ भी हो जाए, गोवा जैसी सुंदर जगह को हम कोल हब नहीं बनने देंगे। और ये जो इन्होंने 3 लीनियर प्रोजेक्ट्स चालू कर रखे हैं, हम इनको नहीं होने देंगे। ये बात आप याद रखिए। माइनिंग अफेक्टेड जो फैमिलीज थी, उनसे मैं मिला और हमने उनको आश्वासन दिया है कि लीगल तरीके से हम माइनिंग को फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगे। In the end, this is a political fight, but this is also a ideological fight. As Girish said, the culture of Goa, the way of life of Goa is also the culture of India and the way of life of India. We are not just fighting an election here. We are fighting a fight about defining what Goa is going to become. How Goa is going to treat itself and how Goa is going to treat the rest of the world. And I want Goa to show the rest of India that Goa can stand together, maintain and protect its wonderful culture, maintain and protect its wonderful environment, and still move forward with vigor and dynamism. So this battle is not just a political battle. This battle is a battle of ideas, and it is a battle of the imagination of Goa. How are you seeing your future? Are you seeing a future which is full of hatred? Are you seeing a future where your daughters cannot step out at night? Are you seeing a future where you cannot speak to each other with love and affection? Or are you imagining a future which is peaceful, a future which is progressive, where everybody benefits, where there is love and affection everywhere, and Goa transmits its most powerful culture, its most powerful ideas to the rest of the country? For me, this is the battle that is taking place here. And this is a battle between two ideologies. We represent one ideology, you represent one ideology, and the BJP represents another ideology. We are the political party that represents a united Goa, a prosperous Goa. We are a political party that represents the idea that Goans can love each other, can work with each other, can embrace each other. They are the political party
that represents the idea that Goa has to be divided. The idea that Goans have to disrespect each other. The idea that Goans cannot share a future together. That is what this fight is about. And I am proud to be speaking to the people, the soldiers and the generals who have been fighting this fight. And I'm proud to say that you're going to win this fight. So, once again, I'd like to thank all of you, not just for today, but for what you carry in your heart, for the way you treat each other, so for the affection that you have, for the optimism that you have, for the hope that you have. And I am certain that the majority of people in Goa carry this hope, this optimism, this love for each other in their heart. So thank you very much. Dev Bare Koru. Namaskar. बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। काँग्रेसीचं सरकार हाडून गोंय सांभाळया, उदरगतीचे लार गांवागांवांनी पावोवया। काँग्रेसीचं सरकार हाडून गोंय सांभाळया, उदरगतीचे लार गांवागांवांनी पावोवया। मार्गाईचो जाला फार सगळीकडेन भ्रष्टाचार दिसपट्टे जातात खून सदाचे जाला बलात्कार आजाराचा केला बाजार ऑक्सिजन जालो काबार कोविडाचे पेशंट मारून बुकेस केले साबार संसार हम पोलीस वादेर काँग्रेसीचं सरकार हाडून गोंय सांभाळया, उदरगतीचे लार गांवागांवांनी पावोवया। काँग्रेसीचं सरकार हाडून गोंय सांभाळया, उदरगतीचे लार गांवागांवांनी पावोवया। we would like to assure you जाणट्यांक वेळार पेन्शन ना आयज जातले फाल्यां जातले मायनींग सुरू कशें जायना आणि तुम सगळ्यांक पळोवन हांव बाब राहुल गांधीक सांगूंक सोदता की हे फावट इन द year 2022 तुमची आदारान we will form the next Congress government in Goa. तुम सगळ्यांक हे जमातीक हाजेर जाल्यांक म्हणून हांव काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा आनी एक बरी रात हांव येता. थँक्यू.